Nichi, good morning. Sorry for you, good evening. Night Hi, sir. How are you? 39, right? Yes, Night, sir. night 39, right? 8:30. Yes, sir. Okay, okay. So I thought 3, 4 chapters are there. Then we'll start your teaching skill. Okay. And meantime, till you are attending, what you can do is you keep attending some classes whenever you are getting time, especially that evening one keep attending. Automatically, what happens? Yes. It will help you out to appear and to book the slot now only. Otherwise, you'll like after some days you'll forget the things. If you'll book now, at least you'll get in 3, 4 weeks. So go to Yoga Certification Board and register first. Okay. So any possible slot, you can appear. Yes, sir. So today 2.15 only, right? So your unit 1, 2, and 3, have you checked syllabus? Anything left? Sir, 1, 2 are complete, and 3 I haven't checked yet. I think only 3, 4 topics are not completed in 3. I'll check and let you know by tomorrow. Okay. Take a long breathe in and breathe out. Take another long breathe in and breathe out. Breathe in for Om. Uh, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनः मृत्युर्मोक्षे यमामृतम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम् हरि ओम् योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलि प्राणुतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम श्री हनुमते नमः ओम पवनसुताय नमः ओम श्री रामति नमः ओम श्री स्वप्नेश्वराय नमः ओम श्री पार्वती नमः श्री राम की जय ओम पार्वती देवी की नमः ओम माँ दुर्गे माँ काली नमः ओम माँ लक्ष्मी सरस्वती प्रज्ञा देवी गायत्री देवी नमः ओम गणपताय नमः ओम कार्तिक देवाय नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम शांति 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 असतो मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमयम् हरि ओम् योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णेय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ऋचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम शिवाय। पितृदेवो पितृदेवो गुरुदेवो अतिथिदेवो। All Veda Vedanta Smara. All the scriptures, all the text, all the Samhita Smara. Ultimate goal of human birth is getting moksha, that is relief from the birth and death cycle and union with supreme consciousness. जीवात्मा परमात्मा का मिलन। जय। So 2.15 is the topic. Okay, Satkarma, Asana, Pranayama, Mudra, and Nada Anusandhana. Riji, are you available, right? Hello. जी सर। So first, we'll recap a little bit about Hatha Yoga. So Hatha Yoga, you know, very basic points now, very clear. Like in mind, it will come medial period first. Second is Ha and Tha. Ha is the sun energy, Tha is the moon energy. And balancing of that will bring out the Kundalini Shakti Prabha in the Susumna Nadi, the central Nadi. That much we are clear now. Next, it is जी सर। by Nath Parampara. So Adinath ji, they have given their Ishtadevta first Guru. Then जी सर। uh, second onwards, it is like Swami Matsyendranath ji, who is the founder of Hatha Yoga जी Parampara. Next, गोरखनाथ जी। Gorakshanath ji, who has like worked and propagated this Hatha Yoga a lot. Then Swami Satmarama, Swami Satmarama, the composer of
Hatha Yoga Pratipika. That much you are clear? जी जी Yes. सर. And this one, Garuda Samhita, is one of the Hatha Yoga text, which is more about Ghatastha Yoga. So they consider like Ghata means our body. So without Shuddhikaran, without Ghata Shuddhikaran, we cannot move to uh, like advanced practices, especially Raj Yoga and all, right? So in that way, 7 limbs is Garuda Samhita, but Hatha Yoga Pratipika speaks about 4 chapters or 4 limbed. This one. So in that, mostly if you see from Ashtanga Yoga, something they focused more is Satkarmas is first required. Then you are going for asana, pranayama, pratyahara, everything. Then mudras, bandhas, that all they focused more. And Hatha Yoga Pradipika 15 asanas, whereas 32 advanced asanas in uh, Garuda Samhita, right? In Garuda Samhita, 32 जी asanas. सर. Already know that. Next, Hatha जी Ratnamali by Srinivas Bharji. Shiva Samhita is there, okay, which is again a dialogue between Shiva and Parvati ji. And Garuda Samhita is a discussion between Maharshi Garanda and his disciple. Hello, Parni ji, little bit voice disconnection happened, right? yes sir, disconnected. Just let me change the internet. I don't know why it's disconnected. Now, is it better? जी sir, but screen is not visible yet. Image is not visible. Huh? No sir. Is it better now? Yes sir, now it's visible. Okay. So, what is the So yoga? but screen is not visible. Screen I have said again. No. Yeah, I got it. So, Hatha Yoga, whatever like points we discussed, post medieval period. Okay, Hatha Yoga more like complements Raj Yoga. Hatha Yoga speaks more about body cleansing first, then look into all the asanas, mudra, bandhas, pranayamas, and all. Hatha Yoga, advanced asanas were there, which was not elaborately covered in Ashtanga Yoga. So, in that way, it is one of the improvement. Then, four days your Hatha Yoga, whereas 7 limbs yoga is your Garuda Samhita, and discussion between Mahasi Garanda and his disciple Chanda Kapali, then 32 asanas in Garuda Samhita, and Sadhak Tattva, Badhak Tattva already covered. So hope you know now that 12 qualities also. Ki, as per Hatha Yoga, what are the Sadhak Tattva, Badhak Tattva? Then Mitahara concept you know now. Patya Apatyahara, you know almost. Good जी in sir. that. And Satkarmas also. Overall, we have described. If required, I'll share another document also, which say what are the Satkarmas. So basic Satkarmas are Siksha, Neti, nasal cleansing, Dhoti, Basti,
Trataka, Naulikriya, and Kapalbhati. These many things are there to cleanse your body. Like in modern yoga, how we'll go to Ayurveda doctors to cleanse our body, or if we have some uneasiness, even that also they'll address as per our Vata Pitta Kapha. So in that way, Hatha Yoga also says ki for an advanced practitioner, for a Raj Yoga meditation and all, Hatha Yoga is the basic. And without Hatha Yoga, Raj Yoga is also incomplete, like that they will say. So both complements each other. So now you know the hierarchy also, right? So Matsyendranath, then Gorakshnath, and then uh, Satmaram. So in that sequence, it's coming. Text also almost you know all, right? And in Hatha Yoga, how many nadis? 72,000 nadis. And in Shiva Samhita, 3,50,000 nadis. And 50,000. major nadis are Ida, Pingala, Susumna. And if you'll go more depth, again, we have like Granthis also there. Brahma Granthi, Vishnu Granthi, Shiva, Rudra Granthi. So the lower one, Muladhara Chakra is your Brahma Granthi. Okay? Creation, reproduction and all. And the center one or like here, uh, maintaining the thing. So it will be like Vishnu Kala, we'll say, right? Vishnu Granthi. Then Rudra Granthi. Rudra Granthi is like transformation, okay? Third eye, you can say, or you can say, if required, a destruction force also comes from here only. So this way, those all are already we are little bit aware. And some texts are saying 101 nadis also, because after 101, that is again further divided into 72,000 nadis, or some texts are saying 101, that is further divided to 100, that 100 again individually divided to 72,000. So in that way, some higher debates are going on, which is claiming 7 crore 72 lakhs 72,000 plus nadis we have in the now. Maybe that may be smaller, okay, some are maybe major nadis like that. Chakra, as I told previously, we are seeing major chakras are 7, but some debates are going on, and they claimed 108 subtle energy junctions are there. So you can say on a higher end, it's 108. So day by day, some new texts are claiming something else. Means it was written in some Purana, some like Veda, somewhere it is there. So these proofs are coming slowly if you'll explore more. But as of now, standard wise, you can say 72,000 nadis. If someone is specifically asking in Shiva Samhita how much, then 3,50,000 nadis. So up to this, you are clear. Or anything new I have Yes, told? sir. No, right? Yes, sir. Now Exactly. we'll go to this one. So intro to Hatha Yoga for wellness. So Hatha Yoga is a system of physical, mental, and energetic discipline designed. So first is purifying body. Satkarma means ghatastha yoga. So you are cleansing your body first. Next, when you are doing asana, pranayama, and all, so definitely balancing of prana happening. Mind calming is there. When you are doing advanced asana cell, your improvable health and vitality is increasing because digestion will happen, your energy flow will be there, good for bone and muscle health. So in that way, 15 or 32 asanas are more than enough to stretch your body. Okay. Next, prepare for meditation and spiritual growth. So everything again linked to Raj Yoga. Why? Because the ultimate goal is Dharana, Dhyana, Samadhi, Samyama, and Kaivalya. So both Raj Yoga, this one, and Patanjali Yoga Sutra, all are claiming, Sankhya Darshan also claiming same. You have to reach to Kaivalya or Moksha. So classical texts like Hatha Yoga Pradipika, Garuda Samhita explain these practices. Next, main Hatha Yoga practices for wellness. So, Sat Karmas. So, just now I told, right? 6 cleansing techniques, out of which in YB you have covered 3. And here also you are know about Basti, Dhoti, and this one, Kapal Bhati, Nauli Kriya, Trataka, Neti. Asanas. So, anyway, Stiram Sukham Asanam is sitting postures in which you go for deep meditation. But here in Hatha Yoga, it is 15 plus 32. Okay.
Hatyoga Pratipika 15, Jaradha Samhita 32. Next, pranayama. So definitely here all the pranayamas were mentioned as usual. Mudras are separate. In mudras, major two categories. Okay, one is Hasta Mudra, hand gestures, and second one is Kaya Mudras, which is directly body related. Means whole body you are performing a kind of circle and all. And mudra is nothing but coin, kind of coin. So you have to suppose I am doing like this. So this is which mudra? Chin mudra or Gyan mudra, right? Next, this one, your like this is Dhyan mudra. Okay. Dhyan So mudra. this is suppose Vishnu mudra. These two are folded and touching here. So this is Ji. Vishnu mudra. So like that, multiple mudras are there. That is also helps. Next is Nada Anusandhana. Nada Anusandhana means suppose I am doing a laya, humming bee. So that humming bee will be completely merged. Or if I'm taking a Bija mantra, or even if I'm chanting Om, so that will after completing also it will take me to deep meditations, and that is nothing but Nada Anusandhana. So there will be small positive vibration within the nerves after that also. For example, so that humming bee, I'm talking now, but if I'm not talking and observing there, small vibration will be there in my nerves. As I'm talking, it's not happening, but you try by yourself. Do the humming be long time and relax just. See a small energy flow and a positive impact in the nada. Nada is like a musical uh, sound. I don't know. Are you feeling now or not? For me, it will happen because for me it is the best time now. I'm in the auspicious timing now. So for me, see, already for me now 2 hours my routine is already over. First, second is I'm in an empty stomach now, and also what I can say is now oxygen quantity will be more, and also I'm in a small what you can say silent, calm place I am now. So out of cities now. So automatically what happens is the purity will be more. So now I can realize more things. Even whatever I'll read, study from 4:30 to 8:39, that will be more effective for me because mentally I am that much fresh. And also we are getting 1 2 days break also, right? So in that way also 2 day body will support more. And every day if you are taking 6 to 8 hours sleep means automatically next day it will be fresh for you. And will even if some shortage of sleep or something is there, we can cover it by yoga nidras and deep meditations. When mentally relaxed means you don't need much more sleep and all. Sat karmas, 6 actions or practices. So these are cleansing techniques used to purify the body and nadis. So one is dhoti, cleans digestive tract. So dhoti is like a small cotton uh, cloth that you are putting in the warm water. Then I'll put into my whole like body slowly. But thing is, I should be in the empty stomach. If I'm doing early dinner and next day morning I'm doing after waste elimination and all, it will be great. And I have to take a lot of water and all. And then I have to do Kunjala Kriya or something so that it will come out completely. Okay. So the dust and all will come out. And then suppose I'll do this already clean.
Now, slowly, if I'll put the dhoti and all, it will pull all the dust, undigested things, some negative amma toxin that all will come out of this. So, next is basti, cleansing colon. So, how we'll say enema and all, chemical, Ayurveda or medical enema we are doing right nowadays. So, that same thing is only basti. Basti is like something in your athne or you can say intestines. It will So be enema is like safe to do, like if we do it at home, someone is doing it. like I'll not recommend initially. First, you have to do with the supervision of medical staff or someone. Like Then I've seen my father doing it at home, but I was not sure it's like safe doing it home without any no, no, it is reason. safe only, but you have to take care. Mm. Like But I have every done. week is okay, like we have to do it like sometime only. Sometime you can do that with empty stomach and all, but Okay. it is like properly guided in empty stomach. You have to take a lot of water and whatever things, equipments you are using, that will be completely hygiene. And first with guidance or you have to uh, take care in medical support, then it's not a big thing. But if wrong way it will be used, it will be a problem. Otherwise, Yeah. no problem. Okay. It is only cleansing, that's it. Maybe you can say teeth cleansing is a external one. It is little bit internal cleaning, that's it. But after that, you'll get much relax. So anima and all medically nowadays, if you go to some clinics and all, they'll help you out. They'll provide you, and people are doing it on a regular basis. And it's not very difficult. Also, only you need those equipments. Yes. And Yeah. suppose you are doing little bit with distilled water or pure water, little bit lukewarm water, then it's okay. Otherwise, saline water is safe because already it's clean and medicated one. Mm. So automatically things will come out. So in that way also, it will create your colon, cleanse your colon. Lot of dry dust, undigested dust will come if you are doing for the first time. If people are doing it for a regular basis, then no issues at all. Next is neti, jal neti, sutra neti, that all are there. After that, your Trataka improves concentration and eye health. Have you done Trataka sometime? Do you know how to do? So I've done little bit like, but not with any candle or something, but with the spot on the wall. I've attended your session only, but I was at work. I wasn't able to do it properly, but I tried for a few minutes. Okay. Next, Nolly. Nolly is like just you are doing the abdominal churning, nothing else. Just like how I can say is just you're like little bit bending, and I'm just trying to turn. So even in standing bending also it is but easy. Kapalbhati already you know. Even Trataka, now already it's a daytime, little bit in Brahmi Muhurta it will be powerful, or in the evening it will be powerful. But with the one dot we can do now only Trataka. So if you wear some specs, you can remove 1 to 2 arms maximum distance. At my eye height, I'll put one dot or one bindi or some mark, and that I'll focus. If you want, you can take one symbol like Om, God symbol. If you have anything in small that you just put, okay, close your eyes, neck straight, back straight. Slowly open your eyes and just focus on the that point. Try not to blink. If it is really painful, then only you'll blink. At least 2 3 minutes you can try now.
Accept all the thoughts as they are. Let them come and go. Any noise, any sound, anything, let them come and go. Slowly close your eyes. Little bit eye burning sensation, little bit watering. It's okay. Slowly open your eyes. और निजी हुआ थोड़ा थोड़ा आंखों से पानी हल्का आया है. जी सर, बट अभी तो आई ब्लिंक अ लॉट। हाँ कोई नहीं, धीरे धीरे होगा. लेकिन जी। हुआ क्या, थोड़ा भी ध्यान दे पाए. जी क्योंकि सर। ये धारणा भी है. त्राटका इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ धारणा ऑल्सो. लेकिन वो नहीं जी। हो पाया तो अगेन यू कैन डू द इंटरनल वन ऑल्सो त्राटका. जितना विचार आए, जो भी साउंड आए, आज्ञा चक्र पे ध्यान रख. अंत त्राटक. अच्छा।
धीरे से आँख खोलो। तो जिनका कैटरीज ऑपरेशन वगैरह हुआ है, बहुत दिक्कत है, वो लोग तो बाह्य त्राटक नहीं कर पाएंगे, तो फॉर देम अंत त्राटक इज बेटर। थोड़ा इजी होगा क्योंकि आंखों का डायरेक्ट बाहर का एक्सपोजर नहीं है। और कैंडल वाला अगर करेंगे थोड़ा डार्क रूम में अंधेरे में करेंगे तो और बेस्ट रिजल्ट्स तो देगा। जो लेजर ऑपरेशन होते हैं उनके बाद कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा मोतियाबिंद कुछ लेजर ऑपरेशंस वगैरह हुआ है, विल अवॉइड फॉर लाइक सम डेज। मेरा लास्ट ईयर हुआ था तो मैं भी कर सकती हूँ। अंत त्राटका कीजिए, ओके। आंखें बंद करके, नहीं तो संभावी मुद्रा अप्लाई करके ऊपर की तरफ देखने का, एनर्जी को पुश करना है। जी। तो उसमें देखिए आंखों का इश्यू ज्यादा नहीं होगा। ओके। जी सर। बेनिफिट्स ऑफ षटकर्मा, टॉक्सिन्स रिमूव करेगा, जिन बस्ती धोती वो सब करेंगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक को इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। कपालभाति से भी और नौली क्रिया से भी आपका इनवॉलेंट्री मसल्स का एक्सरसाइज होगा, तो उससे भी आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो जो गंदे चीज रह गए, अनडाइजेस्टेड चीज रह गए, उसको एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा ये नौली क्रिया, कपालभाति वगैरह। तो उस हिसाब से भी डाइजेशन इम्प्रूव होगा, क्योंकि गंदगी निकल गया, स्पेस मिला तो अच्छे से डाइजेशन होगा। रेस्पिरेशन, तो आपका इससे एक है, नेसल ब्लॉकेज अगर खुल गया तो आपका अच्छा ब्रीद इन ब्रीद आउट होगा, तो मेंटली वो काम करेगा आपको, डोसा बैलेंस करेगा। कपालभाति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फोरहेड साइनिंग तो है, बट ये भी कर रहा हूं ना मैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है। ओके। इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, मन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। प्रिपेयर्स फॉर प्राणायाम एंड मेडिटेशन, आपका शरीर अगर क्लीन है, मन अगर काम है, पूरा आपका लेफ्ट से राइट पूरा डेप्थ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो मदद करेगा। नेक्स्ट, नेति, जल नेति और सूत्र नेति। तो जल नेति से भी आपका क्या होगा, बेसिक घर में जो हम लोग थोड़ा बहुत करते थे पहले भी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का गुनगुना, नहीं तो सिलेन वाटर लेके पूरा यहाँ से पास करके वहां से लेके यहाँ से, और मिल जाता है मार्केट में वो पॉट जिससे नेति पॉट बोलते हैं, तो इधर से उधर से इधर पास करते हैं, तो वो कोल्ड कफ है, थोड़ा दिक्कत है, आराम लगेगा वो। दूसरा हम करते थे उससे भी और इजी टेक्निक क्या है, पूरा पानी को उबाल देते थे, गर्म वाला पानी लेके आते थे, एक एक छोटा सा बाउल में, उसमें कुछ हर्ब्स हो या अमृतन हो, घी क्या है उसको बोलते हैं, विक्स हो, ऐसे कुछ क्रीम डालते थे, एक चादर डाल के पूरा हम स्टीम लेके छोड़ देते थे, तो धीरे धीरे आपका शरीर का खुलना स्टार्ट हो जाएगा उससे। और उसके बाद जो ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, वैसे हमारा घी डालते थे नेचुरली पहले के लोग, तो घी डालने से भी आपका नाक खुल जाएगा, और अगर वो प्योर घी है, घर का बना हुआ है, कोई नेगेटिव इश्यू नहीं आएगा। सो क्लीन्स योर नेसल पैसेज, हेल्प्स इन साइनस एंड एलर्जी वगैरह से आपको रिलैक्स देगा। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम कोल्ड, सूत्र नीति वगैरह करने के टाइम बहुत एक्सट्रीम कोल्ड नहीं रहना है वेदर, बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहना है, और आप भी फिट रहना, क्योंकि आपका भी कोई ईएनटी इश्यू वगैरह है, तो थोड़ा नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल ये बहुत ब्रीदिंग कर देता है, रिलैक्स कर देता है, क्योंकि मेरा पहला जल नेति सूत्र नेति सब जब मैं किया, उसके बाद ना नेक्स्ट डे मुझे अभी भी याद है, अनुलोम विलोम इतना पावरफुल चीज है, उस दिन मुझे पता चला कि अरे हम तो रियल अनुलोम विलोम किए ही नहीं, ऐसा फील आया मैं जब फर्स्ट टाइम किया। तो उसके बाद आपका जेन्युइनली पूरा रिलैक्स कर देगा, कंसंट्रेशन यस आएगा। कपालभाति, तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि आप पूरा ऐसे ऐसे फेंक रहे हो ना, फोर्सफुल एक्सलेशन। लेथर्जी घटा देगा, बॉडी को एक्टिवेट कर देगा। ओके, बॉडी को एनर्जाइज कर देगा, जैसे हम सो के उठने के बाद थोड़ा एक्टिव नहीं लगता, जैसे डे में स्टार्ट करने के लिए एक्टिव नहीं लगता, सेम वे दिस ऑल्सो एप्लीकेबल लाइक दैट। नेक्स्ट, कौन लोग नहीं करना चाहिए, जिनको ऑलरेडी हार्ट इश्यूज है पहले, थोड़ा भस्त्रिका एंड कपालभाति भी बोलते हैं, मंद गति से धीरे धीरे करें, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे में क्या मेंटल कंडीशन है, बॉडी एक्सेप्ट करा, आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, पहले स्लोली एटलीस्ट फर्स्ट 20-21 डेज पूरा मंद गति में कीजिए।
तो इतना इतना अगर आप 5-5 मिनट 7-7 मिनट स्टार्टिंग किए, खाली पेट में करेंगे, पूरा बावेल एम्प्टी होगा, यूरिन वगैरह पूरा खाली होगा, उस टाइम में करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एब्डोमेन से नीचे तरफ इसका एक इम्पैक्ट है, रेस्पिरेटरी का ऊपर इम्पैक्ट है, लेकिन हाई कुछ हार्ट कंडीशन से, हाँ, और आपका पेस मेकर लगा है बॉडी में, कुछ कुछ आजकल बहुत लगा रहे हैं, ब्रीदिंग रिदम नहीं हो रहा है बोल के, तो उन सब केसेस में आपको थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा। क्या उस टाइम में स्टूडेंट्स को मना कर देना, इस कंडीशन में सर यू कैन नॉट डू, डायरेक्टली बोल देना। आसना, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र तो आपको पता है, स्थिरम सुखम आसनम, लेकिन मतलब जो कंफर्टेबल पोस्चर एंड ऑल, सिद्धासन पद्मासन उनके मीनिंग में वो आसना लिखे, लेकिन हठ योगा एंड गरुड़ा संहिता में पूरा एनिमल पोस्चर को मैच करते हुए, ओके, डाउनवर्ड डॉग, ओके, आपका ये जो अपवर्ड डॉग, कुछ कुछ जो था चीजें, मयूरासन एक पिकअप पोस्चर, ओके, आपका ये था टेबल पोस्चर वगैरह, जो क्या बोलते हैं उसको, मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मत्स्य जी के साथ हैं, बट दैट ऑल आर गिविंग यू स्पाइनल ट्विस्ट एंड ऑल, तो आपका पैनक्रियास को प्रेशर करेगा, तो उस हिसाब से अच्छा है। तो पशु लोग वो बहुत इजीली कर लेते हैं, उनका बॉडी उतना फ्लेक्सिबल है, शाम को वो लोग नहीं खाते, और जब बीमार पड़ते हैं खाना नहीं खाएंगे, और उनको कौन कौन से पत्तों को खाना है, चबाना है अपना डिशेस में, गाय को वगैरह पता है। तो कैट एंड डॉग उसको मार्जरी आसन बोलते हैं, मार्जरी, यस। तो उसमें क्या है, स्ट्रेट करके मैं सिर्फ ऐसे करूंगा और ऐसे उठाऊंगा, तो उसमें भी एक स्पाइन का मूवमेंट, पेट का मूवमेंट सब होगा, तो वो सब कुछ नहीं है, एनिमल का रिजेम्बलेंस पोस्चर्स को ही उसमें दिया गया है, तो क्योंकि मार्जरी हम, आसन। हाँ, जो ऐसे नीचे नी जी, नी स्टैंड, कैट एंड क्रो। हाँ, टेबल पोस्चर में आ जाएंगे, और ऐसे जी। ब्रीद इन, हाँ, ब्रीद आउट करके अप डाउन करेंगे ओवर। जी। एक एक प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज के साथ आपका यूनिट 1 2 3 कंप्लीट ना, आपका आज के साथ पूरा चैप्टर्स कंप्लीट, यूनिट 1 2 3, एटलीस्ट थ्योरी यू आर डन। Sir, 1 2 is completely done. 3, I will check. I think 1 or 2 chapters are there. ओके, I'll let you know. हाँ, कोई नहीं, वो मुझे आज मैसेज कर दीजिए। जी। कल से प्रीति जी आ जाएंगे, तो उनका 1 2 चैप्टर है वो भी कंप्लीट करेंगे, यू कैन ऑल्सो लिसन दैट, और जी। आपका भी कंप्लीट करेंगे, टीचिंग स्किल के साथ थोड़ा ये प्रैक्टिकल सेशंस अभी ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा, थोड़ा ऐड हो जाएगा, एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू ए प्रिपरेशन, और स्लॉट बुक करना शुरू कर दीजिए, अभी करेंगे तो आपको 1 महीने के बाद ऐसे मिल सकता है, ओके। जी। और अगर अपना श्याम भाई का चैनल में कुछ बुक कर रहे हैं, आई डोंट नो, आप सपोर्ट टीम से उनसे भी बात कर सकते हैं अगर यू वांट, नहीं तो सिंपल वाईसीबी साइट में बुक कीजिए, जो अवेलेबल है वो मिल जाएगा आप, एक आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कर देना है वाईसीबी पोर्टल में, उसके बाद आपका जी। 1,000 रुपये से ऐसा कुछ चार्ज है उनका, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन चार्ज, सब मिलके एक इंडियन रुपीस के हिसाब से 5 5 to 6 के अंदर आ जाएगा। ओके। Importance of asana for wellness, improve flexibility, increase muscular strength, तो आसन जब करेंगे, आज नहीं पता चल रहा है, बट आप 2 से 3 महीना ऐसा करने के टाइम आपको बाकी लाइफस्टाइल में पता चल जाएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी आ गया बोलकर, अगर आप जनरली रोज या वीकली एटलीस्ट 4 दिन से 5 6 दिन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट आएगा, पोस्चर इंप्रूव हो जाएगा बॉडी का ओवरऑल, ओके, सर्कुलेशन, ओवरऑल सर्कुलेशन रहेगा, आसन अगर रोज कर रहे हैं, कम्स द नर्वस सिस्टम, आसनास मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इन एएनएस अगेन सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, थोड़ा बहुत तो आपका बॉडी को एक्टिव कर देगा, तो अलग चीजें सब, स्ट्रेस एंजाइटी सब खत्म हो जाएगा, और ये आपको हायर मेडिटेशन के लिए, डीप प्राणायाम और आपका ध्यान के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि बॉडी में एनर्जी फ्लो अच्छा है तो और अच्छा से होगा। टाइप्स ऑफ आसनास, मेडिटेटिव आसनास, पद्मासना, सिद्धासना, एंड रिलेक्टिव रिलैक्सेशन आसना, शवासना, मकरासना,
कल्चरल और फिजिकल आसना, भुजंगासना, त्रिकोणासना, ये सब आ जाएगा सब इसमें। फिजिकल आसना के लिए, जो एनिमल रिजेम्बलेंस के लिए, ये ओनली सिटिंग पोस्टर्स इन डिफरेंट वन, जो मेडिटेशन के लिए हेल्पफुल। रिलैक्सेशन आसना आप जानते हो, शवासन तो पीठ के बल लेट जाना, मकरासन पेट के बल लेट जाना और ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे साइड में होकर रहना, वो सब है। So important asanas and benefit. Padmasana, good for meditation. Okay. Improves concentration, calms mind. पद्मासना का बेनिफिट क्या है कि आप बाय डिफॉल्ट ना सीधा बैठ जाते हो, मतलब स्पाइन आपका इरेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और एनर्जी फ्लो ऊपर की तरफ होता है। और सिद्धासना उससे भी पावरफुल है। लेफ्ट वाला आके आपका हील टच करेगा आपका कहाँ, आपका पेरिनियम एरिया में, मूलाधार चक्र के पास टच होगा, ऊपर वाला उसके ऊपर रहेगा। तो ऐसे करके आपका डेफिनेटली ए डीप मेडिटेशन के लिए हेल्प करता है। भुजंगासना स्पाइन को स्ट्रेंथ करेगा, चेस्ट एक्सपांड करेगा, डाइजेशन के लिए भी इंप्रूव करेगा। तो ऐसे जब करते हैं ना, स्पाइन में थोड़ा स्ट्रेच आता है, जैसे ऐसे कर रहा हूं तो स्ट्रेच आ रहा है, वही सेम ऐसे भी स्ट्रेच आएगा। तो ये सब हम लोगों का डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। आज्ञा चक्र पे ध्यान देकर ऐसे पूरा स्ट्रेच देंगे। और पहले शायद ना भी हो, कुछ सीनियर सिटीजन्स और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा चेयर्स वगैरह में बैठ रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे पहले अर्ध भुजंगासन से शुरू करवाना है। तो कंफर्टेबल होने के बाद पूर्ण वाला करवाएंगे। और उसके बाद ट्विस्टिंग वाला, मतलब भुजंग आसन में जाके पीछे की तरह ऐसे देखना है। तो ऑपोजिट एंकल को देखना है, जैसे मैं राइट से घूम रहा हूं तो लेफ्ट एंकल, लेफ्ट से घूम रहा हूं तो राइट एंकल, ऐसे करके वो भी हेल्प करे। और चेस्ट को भी ना लोग ऐसे निचोड़ एक ऐसे ऐसे कॉम्प्रेस करके रख देते हैं, वैसे पूरा ऐसे खुलेगा चेस्ट, तब जाके उसका पूरा फील आएगा, आपको एनर्जी फ्लो आएगा। वज्रासन, वज्रासन आपका नी फोल्ड पोस्चर है। जनरली खाने के लिए बहुत रिकमेंडेड है कि जस्ट खाना खत्म हो गया, वज्रासन में आप बैठ गए, तो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। ओके। आपका मन को काम करेगा, स्पाइन में एनर्जी फ्लो बढ़ा देगा। एंड बाय डिफॉल्ट वज्रासन में बैठने का बहुत लोग का इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि रियली इट विल स्ट्रेंथन योर होल बॉडी, क्योंकि पिंडली प्रेस होती है। पिंडली मतलब काफ मसल को प्रेस करता है, तो उसीलिए पावरफुल है। लेकिन हाँ, जिनका नी इश्यूज है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ, उनको वज्रासन नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। तो उनके सिवा बाकी सबसे करवा सकते। एंकल इंजरीज अगर मेजर है, एक्सीडेंट होके कुछ होके पहले बैंडेज वगैरह हो चुका है, वो लोग वज्रासन में बैठ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा राहत। बाकी सब स्टूडेंट को बिठा सकते हैं इसमें, क्योंकि इससे उनका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नॉट ओनली डाइजेशन, ओवरऑल आपका एक बॉडी का एनर्जी फ्लो होता है ना, वो शवासन। हम लोग जो 15-20 मिनट या 25 मिनट का आसनस करवाए, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, प्रो, एक बार शवासन में बॉडी को रिलैक्स करवाना है। स्ट्रेस रिड्यूस होगा, कुछ फैटिक है, कुछ स्ट्रेच हो गए, अनइजीनेस है, वो लोग नॉर्मल में आएंगे। और उसके बाद हम लोग प्राणायाम में चले जाएंगे। एक 10 मिनट्स करवा सकते हैं 1 आवर में। तो जनरल आप अगर पर्सनली प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं रिकमेंड करूंगा 7-8 प्राणायाम जो हम लोगों ने बताया, थोड़ा कूलिंग चीजें छोड़ के, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड होगा वो सब ऐड कर देंगे तो दिक्कत होगा। नॉर्मल यू कैन डू एवरीथिंग मिनिमम 5 मिनट्स। तो आपको अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो 5 मिनट तो करना ही। तो प्राणायाम आप ऑलरेडी जानते हो कि तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। एक बहुत लंबा इनहेलेशन, फिर कुंभक, फिर एक्सलेशन। ओके। ओ अगेन क्या है आपका, एक्सपांशन के लिए अच्छा है, प्राणमय कोश के साथ लिंक करेगा। आसनास अन्नमय कोश के लिए, लेकिन ये प्राणमय कोश के लिए, इसका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ डायरेक्ट लिंक आएगा। और प्राणायाम इज नथिंग बट ब्रीदिंग एक्सपांशन या रेगुलेशन या होल्डिंग, वो सब चीज इसमें आ जाता है। तो अगेन देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, जो लंबे सांस लेके होल्ड करके छोड़ेंगे, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। तो एलोवेली जो ट्राइचिया के अंदर है, लास्ट में ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जहां गैस एक्सचेंज होता है, वहां तक पहुंचने के लिए लॉन्ग ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट अच्छा है। और अभी जैसे मैं नॉर्मल ब्रीद इन कर रहा हूं, वहां तक कम पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे करूंगा तो वो हेल्प करेगा। तो पूरा का, कुंभ का, रेचे का, तीनों ही रहेगा। पूरा का इनहेलेशन, कुंभ का रिटेंशन और होल्डिंग, रेचे का एक्सलेशन। तो प्राणायाम नाड़ी का शोधन करेगा, नाड़ी शोध प्राणायाम, ईड़ा पिंगला सब आपका क्लीन करने के लिए, चंद्र भेदी
सूर्य भेदी, सूर्य भेदना, चंद्र भेदना, सूर्य प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, आपका हमिंग भी साउंड क्रिएट करेगा। तो जो नादा अनुसंधान बोला, लया योग बोला, उसमें भी जो करते हैं, भ्रामरी भी वही है। तो आपका गामा ब्रेन वेव्स जनरेट करेगा, जो कि आपके लिए बहुत आराम देगा। उज्जयी प्राणायाम, आपका ओशियन लाइक ब्रीदिंग, यहाँ नॉर्मल हमिंग भी, यहाँ ओशियन साउंड। तो उसमें क्या, गले में हम ऐसे करेंगे। आप में कुंभक नहीं है, नहीं तो वो लगा के फिर कुंभक करके लेफ्ट में छोड़ते हैं एक्चुअली ऐसे। तो अंत प्राणायाम इसको इसलिए बोलते हैं, सांस को अंदर रोक लेते हैं। तो आप में अभी नहीं है कुंभक वाला, एडवांस में आएगा। सर जो ब्रीदिंग किया आपने वो लाइक नोज से किया या? नोस पे ही किया, लेकिन गले को निचोड़ लिया, मुंह बंद करके जी। गले को निचोड़ ओके। लिया। आपको आपको अगर उसका आदत नहीं है, गले को निचोड़ के थायराइड ग्लैंड्स को थोड़ा सिकोड़ने का आदत नहीं है, क्या करेंगे, जीवा को ऐसे बार बार बाहर निकालिए, यहाँ टच कीजिए और देखिए, वो वाला ओके। ऑटोमेटिक हो जाएगा कुछ दिन के बाद। जी, इट्स गुड फॉर थायराइड पेशेंट्स। हाँ, थायराइड के लिए भी अच्छा है, सिंगर्स के लिए अच्छा है, स्पीकर्स के लिए अच्छा है, वॉइस क्वालिटी इंप्रूव होगा। और ओवरऑल आपका वॉइस में एक गांभीर्य लाने के लिए, मतलब स्पीकर्स और मेडिटेटर्स के लिए वॉइस में एक स्टेबिलिटी लाना है, तो वो उज्जयी प्राणायाम करते हैं ज्यादा। और एक प्राणायाम भी है, लेकिन उज्जयी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतली शीतकारी आप जानते हो, शीतली में जी। मैं स्ट्रॉ स्ट्रक्चर करके अंदर से खींचूंगा, लेकिन अभी यहाँ कोल्ड है तो मैं करके ज्यादा नहीं दिखा सकता। लेकिन शीतली में जस्ट क्या करना है, स्ट्रॉ टाइप का बना के जूस खींचने की तरह करेंगे। नहीं तो आपका दोनों लीप के अंदर टंग को रख के भी खींच सकते हैं। इसके ऊपर से जाएगा तो यहाँ कूलिंग फील आएगा। नाक से छोड़ दी, भस्त्रिका, थोड़ा धीरे धीरे 1:1 रेशियो में करेंगे। जैसे आपको ओम में 1:2:3, सॉरी 1:1:2 में करते हैं ना, आ उ मा करम, यहाँ भस्त्रिका में 1:1। लेकिन हार्ट कंडीशन है, कुछ क्या बोलता है, बीपी का कंडीशन है, तो उनको थोड़ा केयरफुली, नहीं तो धीरे धीरे करवाएंगे। और मैं जो हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ दैट इज पावर वाला, लेकिन बिना हैंड मूवमेंट का भी अगर लूंगा, मैं इतना लंबा लेके छोड़ूंगा वो भी होगा, देखिए। तो वो कब होगा आपका, धीरे धीरे, अगर बीपी नहीं है कुछ नहीं है, धीरे धीरे भस्त्रिका वो लोग कर सकते। लेकिन मुझे कौन सा पसंद है, क्योंकि बहुत पहले से मैं भस्त्रिका वगैरह जो कर रहा हूँ, स्पेशली आर्ट ऑफ लिविंग में, उन सब में ऐसे करवाता हूँ, वज्रासन में बिठा देते हैं। क्योंकि यार यंग पीपल, यंग बैच, तो हम लोग को पूरा इसमें बिठा देते हैं, जो कि शायद जिनका मेडिकल कंडीशन कंप्लेन कर रहे हैं उनको पता नहीं। लेकिन हमें कभी सिंपल वाला वहां सिखाया नहीं। हम लोग जितने कोर्सेज किए, मैं यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, यस प्लस, उसके बाद टफेस्ट कोर्स उनका डीएसएन, वो सब कर चुका हूँ, एडवांस मेडिटेशन कोर्सेज में। तो यंग जनरेशन के लिए अलग कर देते हैं, तो यंग पीपल को स्पेशली वी आर नॉमिनेटेड फ्रॉम कॉलेजेस, तो हमें ये वाला करवाते थे। वज्रासन में बैठ जाएंगे, आप यू नो हाउ टू सिट, ये करवाते थे हम। तो आप अगर तो उतना, ब्रीद इन नोज से लेना है और ब्रीद आउट माउथ से, लाइक एक मुंह तो पावरफुल बंद है, ब्रीद आउट। मुंह कहाँ खोला मैं। अच्छा, मुंह बंद। ओके, समझ आ गई। कोल्ड कफ, ये वो ब्लॉकेज सब खत्म कर देगा। जी। इवन इवन ये वाला हम लोग जल नीति के बाद भी करते हैं, सूत्र नीति के बाद भी थोड़ा करते हैं, क्यों,
वो यौगिक सॉल्ट मिलाते हैं, थोड़ा सेलाइन रहता है, थोड़ा कहीं ना कहीं पानी का कंटेंट रह जाता है जो स्विमिंग के बाद निकलने के बाद। तो ऐसे करेंगे तो पूरा क्लीन करके फेंक देगा। लेकिन हैंड मूवमेंट, शोल्डर इंजरी है, सीनियर लोगों को जिनका बैक पेन है, अपर बैक इश्यूज है, सर्वाइकल से नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सीधा बिठा देंगे और करेंगे। और पद्मासन में या नॉर्मल सुखासन में बैठ के कर सकते। बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम: लंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा, एंजाइटी से आपको आराम देगा, इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, इम्यूनिटी, नाड़ी शोधन मतलब ही नाड़ी प्राणायाम। मुद्रा, ओके, मुद्रास आर साइकिक, इमोशनल, डिवोशनल एंड एस्थेटिक गेस्टर्स अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ प्राणायाम। जो नॉर्मल मैं कर रहा हूँ, सपोज मैं ऐसे कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन वही मैं मेरुदंड मुद्रा लगा के करूंगा, मतलब जांघों के पास रख दूंगा ऐसे दोनों नी के ऊपर और करूंगा, लेकिन ऐसे आदि मुद्रा करके करूंगा। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड बहुत पावरफुल। जानु शीर्षासन जैसे करते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही करके, ओके, चिन को लॉक कर दूंगा और पूरा संभावी मुद्रा में यहाँ ऊपर देख के करूंगा। सो दैट इज माय बॉडी गेस्चर। योग मुद्रा, ऐसे बेंड, ऐसे फोल्ड करके पीछे पकड़ूंगा, स्पाइन का पीछे, सामने झुकूंगा। तो योग निद्रा पूरा एनर्जी, बॉडी गेस्टर्स बोलते हैं, वो सब आपको हेल्प करेगा। तो जैसे चिन मुद्रा है, इंप्रूव्स कंसंट्रेशन। ज्ञान मुद्रा थोड़ा मेडिटेशन के लिए अच्छा है। प्राणा मुद्रा, ओके, जैसे इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं, ये वाला हेल्पफुल है। फिर इसको भी ऐसे लगा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये वाले को कौन सा मुद्रा बोलते हैं, पृथ्वी है, तो पृथ्वी और अग्नि को मिला दें, पृथ्वी मुद्रा। ओके, सो ये सब अगर आपका बहुत पावरफुल है। महामुद्रा, तो महामुद्रा में हम लोग को क्या करना है, जो अभी बोल रहा था, एक लेग को फोल्ड करके पेरिनियम में टच करूंगा, एक बाहर रहेगा, जानुशिश्न आसन के पूरा टच करूंगा, एंड टोटल बॉडी में एनर्जी फ्लो होगा। लेकिन चिन को लॉक कर दूंगा और संभावी मुद्रा में ऐसे ऐसे देखूंगा। तो दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योग मुद्रा, जो भी अभी बोल रहा था, ऐसे फोल्ड करके पीछे पकड़ के सामने झुक जाएंगे, तो एनर्जी का फ्लो होगा। मुद्रा इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, बैलेंस, एनर्जी फ्लो, काम्स द माइंड। मुद्रा से ना, एक लेडी का लॉन्ग टाइम प्रेगनेंसी नहीं हो रहा था, शादी का बहुत साल के बाद भी नहीं हो रहा था, तो उनके लिए मुद्रा से, मेरे एक गुरुमा है, उनको प्रेगनेंसी का कंसीव फॉर्मेलिटी हो गया। सपोर्ट, मेडिटेशन, एनहांस वाइटलिटी। ओके, जैसे खेचरी मुद्रा है, सॉरी, खेचरी मुद्रा बोल, खेचरी तो ऊपर टच करूंगा टंग को। ए वाला हाकिनी मुद्रा, हाकिनी मुद्रा से अगर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, बहुत सारे एनर्जी फ्लो एंड बेनिफिट्स मिलेगा उसको। नादा अनुसंधान, इनर साउंड, अनुसंधान मतलब एक्सप्लोरेशन और अवेयरनेस। तो एक अवेयरनेस, मेरा एज ईच नर्व में उसका कंपन होगा, तो वो मुझे बहुत पावरफुल। आप अगर देखोगे बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, हमिंग भी साउंड होता है, करके, तो काम्स योर माइंड, इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, ओके, लीड्स टुवर्ड्स मेडिटेशन। तो आपका लय योग, मतलब वो हमिंग बी या सारे गामा में जो एक एक साउंड, नहीं तो लम, वम, वो सब अगर करूंगा, अगर मूलाधार चक्र पे रख के सिर्फ कर रहा हूँ, लम, मन को शांत करेगा। ओके, इनर अवेयरनेस के लिए हेल्प करेगा, डीप मेडिटेशन, समाधि में जाने के लिए हेल्प करेगा। तो आहता नादा, अनाहता नादा। सो आहता नादा इज एक्सटर्नल साउंड, और एक है इंटरनल अनस्ट्रक्ट इनर साउंड, जो हम लोग मन में भी उच्चारण करते हैं ना, वो सब का भी इम्पैक्ट है। ओम चैंटिंग इज कॉमनली यूज फॉर आपका नादा अनुसंधान में। हमिंग बी साउंड जो है, मेंटली पीस करेगा, रिलैक्सेशन देगा, और वाइब्रेशनल बैलेंस करेगा। और जो हमिंग बी है, पूरा डेप्थ में ले जाएगा आपको, इमोशनली आपको प्यूरिफाई करेगा। वेलनेस बेनिफिट्स ऑफ हति योगा: फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, डाइजेशन के लिए तो आप ऑलरेडी सटकर्मा कर रहे हो, इतना आसन कर रहे हो, डेफिनेटली बढ़ाएगा। हेल्थ, रेस्पिरेशन, तो आपका रेस्पिरेटरी सब हेल्प करेगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी प्राणायाम वगैरह है। देन मेंटल बेनिफिट्स, स्ट्रेस घट जाएगा, इमोशनली स्टेबल, मेमोरी इंप्रूव होगा। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, इनर अवेयरनेस, नादा अनुसंधान वगैरह, डीप मेडिटेशन, राज योगा, सब आपको कैवल्य की तरफ लेके जाएगा। सो प्रिकॉशंस, प्रैक्टिस अंडर गाइडेंस, ट्रेंड गाइडेंस, अवॉइड फोर्सफुल ब्रीदिंग। सटकर्मा शुड बी लर्न प्रॉपरली, पहले एक दो बार आप ऑफलाइन करते हुए
कभी कभार जाएंगे अभी तो उनके पास जाएंगे तो बेटर। तो ये है आपका ओवरऑल आज का टॉपिक। एनी डाउट? मैं डॉक्यूमेंट नो शेयर सर, करूंगा और so that, क्लियर। जी सर। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा। ओके, चलिए मैं आपको और एक भी डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा इसके साथ हथियोग का। दोनों देखिए, उसमें पिक्चराइज एंड स्लाइड व्यू भी है, तो दोनों आपको हेल्प करेगा। ठीक है। जी सर, थैंक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए फिर से मिलते हैं कल। ओके, आप 3 का कौन सा है वो सब मुझे मैसेज कीजिए, पेंडिंग वाला। अभी एक बार नोट्स वगैरह देख के रिव्यू कर लीजिए एंड लेट लेट मी जी नो। सर। अकॉर्डिंगली विल प्लान दिस वीक में आपका यूनिट 3 का। अगर 3-4 बचा है खत्म हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा है देन जी। इट विल टेक मोर 2 वीक्स। ओके सर, थैंक यू।